So let us continue with the exemption of services. So point number 17, services of transportation of passengers with or without accompanied baggages by railway in classes other than first class AC कोच. हाँ, मतलब फर्स्ट क्लास ट्रैवल आप कर रहे हो या फिर एसी से ट्रैवल कर रहे हो, जैसे हम लोग थ्रू ट्रेन में या फिर लॉन्ग जर्नी ट्रेन में एसी कोच बुक करते हैं, तो फर्स्ट क्लास, सेकंड क्लास, थर्ड क्लास जो एसी कंपार्टमेंट्स रहता है, तो वो सब्जेक्ट टू जीएसटी है. जो रेगुलर कंपार्टमेंट है दैट इज नॉट सब्जेक्ट टू जीएसटी. देन यू हैव मेट्रो, मोनोरेल, ट्रामवे, उस पे जीएसटी नहीं है. देन इनलैंड वाटरवेज. इनलैंड वाटरवेज में भी आप देखोगे कि मोस्ट ऑफ यू माइट हैव ट्रैवल्ड टू अलीबाग बाय द स्मॉल बोट, तो वहां पे वो जीएसटी आपको चार्ज नहीं करते. बट अगर आपने कभी एसी, उधर भी आपको पता रहेगा तो एसी बोट भी रहता है उधर. हैव यू बीन थ्रू एसी बोट? नहीं, तो वहां पे भी एसी बोट रहेगा, तो वो टैक्सेबल हो जाएगा. जो रेगुलर बोट्स है वहां पे आपको जीएसटी चार्ज नहीं करेंगे. Then you have public transport other than predominantly used for the tourism purposes in a vessel between places located in India. Then you have metered cabs, ऑटो रिक्शास इंक्लूडिंग ई रिक्शास. तो ये सब किस में आ जाएगा? पॉइंट नंबर 17 में आ जाएगा. देन पॉइंट नंबर 18, just a second. Services by way of transportation of goods by road except the services of GTA, courier services, courier agency and by inland waterways. Courier is always subject to GST. GTA में ऑप्शन है कि आप इधर फॉरवर्ड चार्ज या फिर आरसीएम के अंडर कवर हो सकते हो. तो अगर आपने चूज किया अंडर आरसीएम तो सामने वाला पार्टी टैक्स भरेगा. इफ यू डिसाइड टू गो अंडर फॉरवर्ड चार्ज देन यू विल हैव टू चार्ज जीएसटी. So obviously if you get covered under RCM, means if you don't charge GST तो आपको input tax credit भी नहीं मिलेगा. But if you decide to charge GST under forward charge mechanism, then you are eligible for the input tax credit. Then you have services by of transportation of goods by an aircraft from a place outside India up to custom station of clearance. अभी देखो custom clearance तक जो भी आपको services लगेगा transportation related, उसके ऊपर जीएसटी चार्ज नहीं होगा. उसके आगे जो रहेगा उसके ऊपर आपको जीएसटी चार्ज करना पड़ेगा. Then with effect from 25th Jan 2018, which is now continued till September 2020, that services by way of transportation of goods by an aircraft from custom station clearance in India to a place outside India. तो ये एग्जाम्शन वो लगातार एक्सटेंड करते जा रहे हैं. पहले 18 तक था, फिर 19 तक हो गया, अभी 20 तक हो गया, तो अभी मोस्टली वो 21 तक एक्सटेंड होने का चांसेस है. Then services by way of transportation of goods by vessel from custom station clearance in India to a place outside India. Again this exemption is extended. So aircraft में इंडिया से इंडिया के बाहर जाने के लिए जो सर्विस एयरक्राफ्ट या वेसल से मिलेगा, those services would be considered to be tax free. Then next point you have is services by way of transportation by rail or vessel from one place in India to another place in India for the following goods. So they have kept this list of goods where the exemption is granted. So you have to remember this list because many times this list will be repeated. हम लोग आगे के points भी देखेंगे, तो उसमें ये पॉइंट सेम टू सेम रिपीट होगा. हाँ, रिपीटेशन होगा ये पॉइंट का. तो ये पॉइंट कौन कौन सा है? तो रिलीफ मटेरियल मेंट फॉर विक्टिम्स ऑफ नेचुरल और मैन-मेड डिजास्टर्स, कैलामिटीज, एक्सीडेंट्स एटसेट्रा और मिसहैप. देन जैसे बीच में बहुत ज्यादा हैवी बारिश होने के बाद जो फैसिलिटी प्रोवाइड किया कि रिलीफ मटेरियल प्रोवाइड किया विक्टिम्स को, या फिर उनको स्पेशल बोट अरेंज किया था उनको वहां से ट्रेन से निकालने के लिए. आपने न्यूज सुना रहेगा, लाइक many people were caught inside the train and the level of water was increasing continuously. So
The armed forces member were brought there and those people helped them out to take the passengers from the from the railway. अभी ये जो भी फैसिलिटी मिलेगा उनको या रिलीफ मटेरियल प्रोवाइड करेंगे, so that would be tax free. Then defense or military equipment, newspaper or magazines which are registered with the registrar of newspapers. Then railway equipments and material, agricultural produce. Then milk, salt, food grains including flours, pulses, rice and organic manure. तो ये सबको आपको exemption मिलेगा. Then services provided by way of goods transport agency by way of transporting a goods carriage of. अभी यहाँ पे देखो मोस्ट ये जो पॉइंट्स है ना A to F, सेम पॉइंट्स इधर भी है, सिर्फ यहाँ पे भी आपको दिखेगा कि इधर F तक है, इधर G H दो पॉइंट्स ऐड हुए हैं. तो वो दो पॉइंट्स कौन से वो हम लोग देख लेते हैं, सिर्फ बाकी सब पॉइंट सेम है. एग्रीकल्चर प्रोड्यूस सेम है, देन मिल्क सेम है, ऑर्गेनिक मैन्यूर, न्यूज़पेपर, रिलीफ मटेरियल, डिफेक्ट, ये सब पॉइंट सेम. तो चेंज कौन सा है, तो सिर्फ ये दो पॉइंट्स नए हैं. तो लेट अस फोकस ऑन दोस टू पॉइंट्स. Goods where the consideration charged for transportation of goods on a consignment transported in a single carriage does not exceed rupees 1,500. So that means every time जरूरी नहीं कि मैं सबका मटेरियल एक ट्रक या एक के लिए एक स्पेशल व्हीकल अरेंज कर दूं. So there is a possibility that I will arrange a common truck or I will arrange a common vehicle through which the goods are transported. एंड एक ही ट्रक में लेट अस से 5 लोगों के गुड्स एक साथ है. तो इफ आई एम कैरिंग गुड्स ऑफ 5 पीपल टुगेदर, सो देन द वैल्यू ऑफ दोज गुड्स शुड नॉट एक्सीड 1,500. एंड इफ इट इज नॉट एक्सीडिंग 1,500 देन इट विल बी exempted फ्रॉम टैक्सेस. बट ऑब्वियसली 5 लोगों का या जितने भी लोग हैं, जितने भी कंसाइनमेंट साथ में लिए, सबका अगर 1,500 के ऊपर गया देन द ट्रांजैक्शन इज सब्जेक्ट टू जीएसटी. तो आपको ये लिमिट याद रखना है कि ये 1,500 के ऊपर जाना नहीं चाहिए. अभी श्योर वी आर टॉकिंग अबाउट टोटल लाइक ऑल द थिंग्स टुगेदर, बट ऑन इंडिविजुअल बेसिस आल्सो यू नीड टू चेक. तो दैट इंडिविजुअल लेवल पे चेकिंग कितना है इधर. तो गुड्स वेयर द कंसिडरेशन चार्ज फॉर ट्रांसपोर्टेशन ऑफ ऑल सच गुड्स फॉर अ सिंगल कंसाइनी डज नॉट एक्सीड 750. तो अगर सिंगल कंसाइनी को 750 के ऊपर चार्ज कर रहा है, लाइक सपोज जो 5 मेरे कंसाइनमेंट है सबका मिलके टोटल 1,400 हो गया, तो ऑब्वियसली एक्सीड नहीं हुआ तो मैं खुश हूँ. लेकिन उसमें से एक पर्सन का कंसाइनमेंट 900 रुपए का है एंड बाकी लोगों का छोटा छोटा कंसाइनमेंट. तो यहाँ पे सिंस वन ऑफ द पर्सन हैज क्रॉस्ड 750, सो ऑब्वियसली वो सिंगल कंसाइनी का जो एक्सीड हुआ है तो उसके हिसाब से हमें वो सिंगल कंसाइनी को चार्ज करना पड़ेगा, बिकॉज हिज अमाउंट हैज क्रॉस द लिमिट्स. सो फॉर दैट पर्टिकुलर रीजन यू हैव टू चार्ज देम जीएसटी. रेस्ट पॉइंट्स आर सेम. ये सब के लिए अगर मैंने जीटीए सर्विस प्रोवाइड किया तो वहां पे मुझे जीएसटी चार्ज नहीं होगा. ऑलराइट. Then you have services by way of hiring, giving on hire to a state transport undertaking a motor vehicle meant to carry more than 12 passengers, or to a goods transport agency a means of transportation of goods. तो मैं क्या कर रहा हूँ, इंडिविजुअल लाइक मेनी टाइम्स यू माइट हैव सीन कि जहाँ पे कुछ प्रॉब्लम हो जाता है या फिर कुछ फेस्टिवल रहता है या फिर कुछ अरेंजमेंट्स करना रहता है, तो गवर्नमेंट को सर्टन व्हीकल्स आर रिक्वायर्ड. लाइक आपने देखा रहेगा कि कुछ प्रॉब्लम हो गया, नेचुरल कैलामिटी या ऐसा कुछ प्रॉब्लम हो गया, तो द गवर्नमेंट विल नीड सर्टन फैसिलिटीज लाइक बस. या फिर जब भी फेस्टिवल सीजन आता है, स्पेशली गणपति सीजन में आपने देखा रहेगा, या फिर समर सीजन में एक्स्ट्रा बसेस वो अरेंज करते हैं. बट डू यू थिंक गवर्नमेंट परचेसेस दोस एक्स्ट्रा बसेस? दे डोंट परचेस इट. व्हाट दे डू इज दे टेक इट ऑन अ रेंटल बेसिस. तो रेंटल बेसिस पे अगर मैंने एक्वायर कर लिया है तो हम लोग कंसिडर करेंगे कि ये अमाउंट टैक्सेबल होना चाहिए. कभी अगर एक पर्सन ने गवर्नमेंट को दिया तो एग्जाम, लेकिन किसी भी पर्सन ने दूसरे बिजनेस ऑपरेटर को दिया तो टैक्सेबल होगा. फॉर एग्जाम्पल, दो टूर्स एंड ट्रेवल्स कंपनी है, तो एक कंपनी ने दूसरे को बस दिया तो वो टैक्सेबल होगा,
लेकिन एक टूर कंपनी है उसने गवर्नमेंट को दिया ये बस फैसिलिटी या बस हायर पे दिया, तो ये इस हायर चार्जेस के ऊपर जो जीएसटी रहेगा वो टैक्सेबल नहीं होगा। वे बेसिक रीजन इसके पीछे है, अल्टीमेटली सर्विस जा रहा है गवर्नमेंट को, तो अल्टीमेटली हम लोग एक पॉकेट से कलेक्ट करके दूसरे पॉकेट में डाल देंगे तो कुछ फर्क नहीं पड़ता। इसके लिए गवर्नमेंट डज नॉट चार्ज जीएसटी ऑन दीज ट्रांजैक्शन। सॉरी, एंड इसमें और एक इम्पॉर्टेंट पार्ट आता है कि मोस्ट ऑफ द केसेस द फैसिलिटी वुड बी प्रोवाइडेड टू स्टेट गवर्नमेंट। उसमें क्या होगा, मैं पैसा स्टेट गवर्नमेंट से कलेक्ट करूंगा एंड अल्टीमेटली उसका हाफ पोर्शन किधर जाएगा, सीजीएसटी में जाएगा एंड एसजीएसटी। तो सीजीएसटी का पोर्शन चला गया गवर्नमेंट को, तो नेचुरली सेंट्रल गवर्नमेंट के पास पैसा जाएगा। देन यू हैव सर्विसेज बाय वे ऑफ access to a road or bridge or on payment of toll charges. Luckily toll या इस पे GST नहीं है. Then services by way of lodging, so loading, unloading, packing, storage or warehousing of rice. ये specific item उन्होंने exempt कर दिया है. Then services by way of warehousing of minor forest produce exempted from taxes. तो forest produce छोटा वाला रहेगा तो वो exemption में जाएगा. Then services by way of storage of warehousing of cereals, pulses, fruits, nuts and vegetables, spices, copra, sugarcane, jaggery, raw vegetable fibers, jute, indigo, unmanufactured tobacco, betel leaves, tendu leaves, coffee and tea are totally exempted from taxes. Then transportation or distribution of electricity by an electricity transmission or distribution. Now see, electricity comes in necessity part. So even though MSCB and BSNL are both considered to be government controlled companies, but MSCB doesn't charge you GST. But if you look at BSNL, so on their monthly bill, or MTNL, their monthly bill, the GST would be charged. Then services by the Reserve Bank of India. Now this is very easy to understand, but there is one crux. Like in service tax, they mention services provided by RBI and services provided to RBI. Both were exempted from taxes. But now they have mentioned that services by RBI, मतलब RBI जो service provide करेगा वही service क्या होगा, exemption में जाएगा. बाकी services क्या रहेगा, मतलब जो RBI सर्विस रिसीव करेगा उसमें unless the service is exempted from taxes, rest cases the service becomes taxable. Okay, then services by way of extending deposit loans or advances in so far as the consideration is represented by way of interest or discount other than interest involved in credit card services. Then sell or purchase of foreign currency amongst banks or authorized dealers of foreign exchange as amongst banks and such dealers. ये हमने पॉइंट देखा था कि जब भी एक्सचेंज दो बैंक्स में होगा या फिर एक मनी एक्सचेंज सर्विस प्रोवाइडर बैंक को देगा या फिर बैंक मनी एक्सचेंज सर्विस प्रोवाइडर को सर्विस देगा, फैसिलिटी देगा, तो ये फैसिलिटी क्या होगा, एग्जम्प्टेड फ्रॉम टैक्सेस रहेगा. जनरली बैंक जो लोन देता है तो वो लोन पे आपको इंटरेस्ट पे करना पड़ता है, एंड ये इंटरेस्ट पे लकीली गवर्नमेंट ने जीएसटी चार्ज नहीं रखा, बिकॉज अगर उसके ऊपर जीएसटी रख दिया तो फिर गए फिर. तो उसके लिए लोन के ऊपर का जो इंटरेस्ट है, फिर लोन सर्विस जो बैंक दे रहा है उसके लिए गवर्नमेंट जीएसटी चार्ज नहीं करेगा. लेकिन बैंक क्या करता है, लोन सैंक्शन करते वक्त सैंक्शन चार्जेस, डिसबर्समेंट चार्जेस, इससे बड़े प्यारे प्यारे नाम देके आपको चार्जेस लगाते हैं. तो ये जो चार्जेस आपको चार्ज कर रहे हैं तो उसके ऊपर आपको जीएसटी पे करना पड़ेगा. So that amount will be collected by bank and that will be deposited to the ultimately the government. Then you have services provided by banking company to basic savings bank deposit account holders under the Pradhan Mantri Jan Dhan Yojana. तो ये स्कीम के अंदर जो फैसिलिटी आपको मिलेगा वो एग्जम्प्टेड में जाए. Okay, then services of life insurance business provided by way of annuity under the NPS regulated by Pension
fund, Regulatory and Development Authority of India, under the act. So that means ये जो pension services दे रहे हैं या फिर NPS का स्कीम जो दे रहे हैं वो भी एक टाइप का सर्विस है. So that will be considered as non-taxable service. Then services of life insurance business agreed to be provided to Army, Naval and Air Force group insurance funds to members of Army. So obviously it is exempted from taxes. Then central arm. दारू बंद करे. Huh? Sorry. Yes. Okay. Services of life insurance provided or agreed to be provided to Central Armed Police Forces Group Insurance Funds, that is again exempted from taxes. अभी इसके आगे दो चार नाम है ना, वो आप सिर्फ शॉर्ट फॉर्म उधर लिख के रखोगे तो भी सफिशिएंट है. You need not again and again by heart all these points from 30th. 4-5 पॉइंट में आप शॉर्ट फॉर्म याद रखोगे तो भी चलेगा. 30th पॉइंट इज ESIC, एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन. तो ESIC ये मैंडेट में आ जाता है. लाइक सर्टेन ऑर्गेनाइजेशन, सर्टेन कंपनीज, इट हैज मेड मैंडेटरी. सो इसके लिए ESIC स्कीम में आप ESIC का कोई भी सर्विसेज रहेगा तो वो exempted from taxes आएगा. Then employees provident fund organization, तो EPFO you can remember, employees provident fund. जैसे यहाँ पे ESIC था वैसे यहाँ पे आएगा employees provident fund. Then you have coal mines provident fund. So again it is a type of provident fund. Then 31B is NPS. Just remember NPS national pension scheme related कुछ service रहेगा तो वो exemption में जाएगा. Then you have IRDA 32nd, Insurance Regulatory and Development Authority. तो IRDA services भी क्या होगा, tax free रहेगा. Then SEBI ऐसा उधर लिख के रखो, SEBI short form. Services provided by SEBI for setting up the Securities and Exchange Board of India by way of protecting the interest of the investors in securities and promote the development of and regulate the securities market. तो ये उनका functions है. ये function को control करने के लिए या फिर इधर strict रहने के लिए they have made these provisions. Then you have services by an acquiring bank to any person in relation to settlement of amount up to ₹2,000 in a single transaction transacted through the credit card, debit card, charges and any other payment card receipt. तो यहाँ पे आपने देखा रहेगा कि आप जब भी ऑनलाइन पेमेंट करते हो तो कभी कभी दे आस्क यू क्वेश्चन. छोटा अमाउंट रहेगा तो नहीं पूछते, बड़ा अमाउंट रहेगा तो दे जस्ट लेट यू नो दैट ऑन दिस ट्रांजैक्शन अगेन the charges will be levied and वो charges पे GST भी आएगा. Then 34A, services supplied by central government, state government, union tertiary to other undertakings or public sector undertakings by way of guaranteeing the loans taken by such undertaking or PSU from the financial institution. तो ये सब ट्रांजैक्शन क्या होगा, एग्जम्पशन में जाएगा. ओके 35th, यहाँ पे सब स्कीम्स का नाम दिया है. जनरल इंश्योरेंस बिजनेस प्रोवाइडेड टू फॉलोइंग स्कीम्स. यू नीड नॉट बाय हार्ट द नेम्स, can just remember. Then services by way of life insurance business provided to the following schemes. ये स्कीम के अंडर अगर सर्विस प्रोवाइड किया तो वो टैक्स फ्री में जाएगा. एक तो है जनश्री बीमा योजना,
then Aam Aadmi Bima Yojana Life Micro Insurance Product, which is approved by the IRDA. Then Varisht Pension Yojana, Pradhan Mantri Jeevan Jyoti Yojana, Jan Dhan Yojana, वय वंदन योजना, ये स्कीम में आपने कंट्रीब्यूशन दिया तो ये एग्जम्पशन आपको मिलता जाएगा. Then 37, contribution to Atal Pension Yojana, so that is exempted. Then services by collection and contribution, whether under any pension scheme of the state government or otherwise, so that will be exempted from taxes. Then ओके आगे का दो करते हैं हम लोग एंड फिर सम्स के पास जाते हैं 40 तक करके. अभी 39 देखो, 39 क्या है देखो, सर्विसेज by the following person in respective capabilities, business facilitator or business correspondent to a banking company with reference to accounts in its rural branch area. तो उसके accounts related कुछ सर्विस दिया तो वो सब टैक्स फ्री कैटेगरी में जाएगा. Then any person as an intermediary to business facilitator or business correspondence with reference to services mentioned in entry A above, A related कुछ रहेगा तो वो exemption में जाएगा. Then point number C, business facilitator or business correspondent to an insurance company in rural area. तो वो rural area में रहेगा तो वो भी क्या होगा, exemption category में आएगा. अभी next जो point है that is with reference to the इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विस सेंटर. तो ये इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विस सेंटर जो बीच में डिस्प्यूट चल रहा था कि एग्जैक्टली वेयर दैट सेंटर शुड बी लोकेटेड, सो ये जो IFSC है तो ये क्या करता है, तो इंटरमीडिएट ऑफ फाइनेंशियल सर्विसेज लोकेटेड इन मल्टी सर्विसेज SEZ विद इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विस सेंटर status to a customer located outside India for the purposes of financial सर्विसेज इन करेंसीज अदर देन रुपीस. तो ये अगर सर्विसेज उन लोगों में एक्सचेंज हो रहा है तो ये सर्विसेज क्या होगा, टोटली टैक्स फ्री हो जाएगा. देन यू हैव पॉइंट नंबर 40, services provided to central government, state government, union territory under any insurance scheme for which total premium is paid by central, state government, union territory. तो इन सेंट्रल गवर्नमेंट ने अगर इंश्योरेंस प्रीमियम पे किया है तो अल्टीमेटली इंश्योरेंस कंपनी सर्विस दे रहा है गवर्नमेंट को, तो ये ट्रांजैक्शन को वो